let us begin this. Okay. Now, first, I am starting from the summary of the last lecture. Okay. So, coming back to our objective is to understand ourselves, people around us, and nature. तो हम लोग अपने को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे चारों ओर लोग हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और जो नेचर है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. And because we are interacting with what? People around us and nature around us. Okay? Society and all the structure which the society has made, we are interacting with that. Okay? So once we understand that, then we will apply that knowledge to problems of our life, and hopefully we will be able to improve uh, the quality of our life. Okay? तो पहला जो हमारा मेन पॉइंट था वो ये था कि अर्थ लाइफ इज इवोल्यूशनरी. दैट मीन्स अर्थ हैज ग्रोन फ्रॉम मैटर टू प्लांट्स, plants to animals, and animals to man. So this is how the evolution has come up. Okay. So what do we know from here? That man has come from animals. But when man has come from animals, it also has a legacy of the animal nature, because we have some characteristics of animal beings ingrained in our whole being, in ourself. For example, we had talked about hunger, rest, fear, and sex. These are the four typical characteristics of an animal, which is called like ahar, nidra, bhai, and maithun. And these four characteristics or these four forces govern animal life almost. So the animal is surrounded by these four forces. But human being is controlled less or more by this. So depending upon the person, if you are more towards animal, these forces will dominate more on us. But if we are more towards man, these forces, the impact of these forces will keep on going down. So, but they are not totally controlling us. There are many more things which are controlling us. Now, then we studied that man is different from animals. Now, obviously, we are not animals, and how we differ from animals is that we are carrying mind. And our mind is far more developed than in animals. तो ये एक करेक्टरिस्टिक है जो कि हमें एनिमल से डिफरेंशिएट करती है. Now, what man has done is he has used his mind successfully to solve the many problems of our life. For examples, जो एनिमल लाइफ की प्रॉब्लम है सच एज हंगर एंड फियर, विच वी हैव ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड. आज आदमी के सामने फूड की प्रॉब्लम नहीं है और इसी तरह से फियर भी नहीं है. नेचर को एंड जो एनिमल्स हैं इनको आसानी से आदमी कंट्रोल कर सकता है. तो ही इज फ्री ऑफ हंगर एज वेल एज फियर. ऑफ कोर्स the other two, the sleep and the sex, they are still there, but these two he has been able to control to a large extent. But then there is another thing, that mind when helps man to solve many of the problem, it is also a source of many other problems. तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एनिमल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं माइंड से ओरिजिनेट होती हैं. फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. एनिमल्स में ये इंस्टिंक्ट नहीं होती, ये फीलिंग नहीं होती. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, रिलेशनशिप्स, राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट, गुड और बैड का कॉन्सेप्ट, पर्पस ऑफ लाइफ, concept of success, the concept of failure, law of karma, fate, death, all these things are part of only human life, more or less.
तो ये जो है माइंड के आने से ये और प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई, एंड यू विल, if you look at your life, you'll find that these are the actual problems which you want to solve. तो आप एनिमल लाइफ से ह्यूमन लाइफ में तो आ गए, और वहां की कुछ प्रॉब्लम्स आपने कैरी ओवर की हैं, बट आपकी एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव कम अप. Okay, so this is what we had studied in the last lecture, and our attempt would be to solve these problems and live a happy and meaningful life. This is what we attempt to do. Now, what are the contents of this talk? तो हम ये जो आज की टॉक है, इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे. एक तो हम ग्रीड के बारे में बात करेंगे, which may be termed as an urge to accumulate. The second is attachment versus love. ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप में मोह और प्रेम, ये दो चीजें हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे. देन व्हाट इज एम्बिशन, ठीक है. देन एम एंड इट्स ओरिजिन, एम और एम्बिशन में क्या फर्क है, और एम का ओरिजिन क्या होता है, एम्बिशन का ओरिजिन क्या होता है, इसको हम स्टडी करेंगे. और वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स वेयर फियर, अटैचमेंट, एम्बिशन, रीजन ये इंटरप्ले करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट पीपल विल रिएक्ट डिफरेंटली in a given situation. Then we will talk about rules versus morals, कि रूल्स क्या होते हैं और मॉरल्स क्या होते हैं, उनका जेनेसिस क्या है, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये हम बात करेंगे. अब हम जो है ग्रीड के बारे में बात करते हैं कि ग्रीड क्या है. इसके बाद भी कुछ चीज़ें आएंगी जो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आइडियल्स. मेंटल लेवल पे हम और ऊपर चले जाएंगे, हम आइडियल्स के बारे में बात करेंगे, रीज़न के बारे में बात करेंगे, हम रीज़न की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, इंट्यूशन के बारे में बात करेंगे, हम फेथ और जो है फेथ के बारे में बात करेंगे. तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को गवर्न करती हैं. हम उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे. अब हम ग्रीड के बारे में बात करते हैं कि ग्रीड क्या चीज़ है. ग्रीड इज बेसिकली एन अर्ज टू अकोमुलेट. अब ग्रीड क्या होती है कि देयर आर टाइप्स ऑफ मेन. आप देखिएगा, एक चीज आप नोट करके रखिएगा कि ये जो इवोल्यूशन है वो जब मैटर से स्टार्ट हुआ और एनिमल तक आया, तो हर इवोल्यूशन में जैसे जैसे कोई चेंज होता था, तो वो जो आउटर करेक्टर है या आउटर शेप है वो भी बदलती जाती थी. मैटर की शेप अलग होती है, प्लांट्स की शेप अलग होती है, एनिमल्स की शेप अलग होती है, और हर एनिमल की शेप अलग होती है. लेकिन जब हम लोग ह्यूमन डोमेन में आ गए, तब क्या होता है कि शेप नहीं बदलती. अब जो इवोल्यूशन हो रहा है वो मेंटल लेवल पर हो रहा है, और इसलिए आप देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं वो बाहर से दिखने में सेम लगते हैं, but if you study them, there are many different types of people. So first man we are talking about is a person who we may term as a material man or a physical man. इस व्यक्ति को हम कैसे डिफाइन करेंगे? This type of a person is basically driven by sense satisfaction. तो उसका जो पूरी लाइफ है ना, उसको जो प्लेजर्स के ऊपर, जो उसको प्लेजर्स मिलते हैं ऑब्जेक्ट से, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड रहती है, ठीक है. और उसके पास कोई हायर एम नहीं है, जैसे नॉलेज के लिए या हार्मनी के लिए, ब्यूटी के लिए, फ्रीडम के लिए, यूनिटी के लिए. यू विल फाइंड दैट देयर आर पीपल हु स्पेंड हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर नेशन. There are people who sacrifice their life for particular social service or some other cause. कोई एनिमल कॉज के लिए काम कर रहा है, कोई सोशल कॉज के लिए काम कर रहा है, और कोई आदमी है सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है, कोई है कि बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है.
तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आर देयर। तो ये जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ जो है, जो प्लेजर इनको फिजिकल चीज़ों से मिलता है उस पर कंसंट्रेटेड होते हैं। और ये जो लोग हैं, क्या कहते हैं, गिव्स मोर वैल्यू टू मोर मटेरियल पोजेशंस। देखिए, आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग होते हैं हु गिव मोर वैल्यू टू नॉलेज। देयर अदर who give more value to your work. So different type of people are there. All these people look identical when you look from outside. तो ये जो लोग हैं, ये मटेरियल पोजीशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं और इसलिए इसको अकोमुलेट करते हैं, बिकॉज उनके लिए मटेरियल पोजीशन ही सब कुछ होता है। नाउ इनके साथ एक चीज और होती है, वो फियर ऑफ अननोन तो किसी के साथ भी हो सकता है। Fear of unknown is fear of future. You are uncertain about future. All of us are uncertain about future. But these people who are governed by material position or attracted towards material position, जब वो उनके अंदर फियर भी आएगा तो वो क्या करेंगे, अकोमुलेट करना शुरू कर देंगे। क्या चीजें, प्रॉपर्टी अकोमुलेट करेंगे, चीजों को अकोमुलेट करेंगे और मनी को अकोमुलेट करेंगे। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। क्योंकि उनके हिसाब से पैसे से ही ये सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और फ्यूचर में जब इनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो पैसा ही इनको काम आएगा और इसलिए उसको ये अकोमुलेट करते हैं। तो और ये जो अकोमुलेशन है इनका, ये व्हाट इज अ ग्रीड? ग्रीड इज अकोमुलेशन मोर देन योर प्रेजेंट नीड। आपकी जो नीड है, तो वो जो है, जब आप हम जो आपकी प्रेजेंट नीड है और जो इमीडिएट नीड है थोड़ा बहुत, अगर आप उससे ज़्यादा आप फ्यूचर की नीड्स के लिए अगर चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं जो कि अनसर्टेन है, देन वी मे कॉल इट एज ए ग्रीड। ठीक है। अब आप देखिए कि एक और चीज़ है कि ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों को तो मटेरियल पोजेशन से मतलब होता है। They are thinking in terms of properties or in terms of food or in terms of uh, uh, cars and all those luxuries. But there are people who measure their success by or achievement or their superiority by material possession. आप देखेंगे अक्सर लोग ऐसे होते हैं, वो बात करते हैं कि देखो, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, इसने इतने करोड़ का बंगला खरीद लिया है, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इसने इंडस्ट्री खोल ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इसके पास इतना पैसा है। तो नॉट ओनली दे आर रनिंग आफ्टर द physical objects, because of the pleasure they get out of it, they get a sense of success and achievement, a sense of superiority by virtue of their material position. तो वो क्या करते हैं कि वो और इसको इकट्ठा करते हैं। तो इसका मतलब कि एक आदमी जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बड़ी गाड़ी है, ज्यादा बड़ा बंगला है, ठीक है, जो ज्यादा रिच है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा उसने अचीव किया अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ इज मोर मीनिंगफुल और वो सुपीरियर है। इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती हैं और ये फिर जो है हमें उसकी तरफ पुल करती हैं और हम उसको और इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं जो कि मटेरियल पोजीशन से गवर्न होते हैं, ठीक है, और जो मटेरियल पोजीशन से ही अपनी लाइफ की सक्सेस को डिटरमिन करते हैं, वो इसको अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, या तो आउट ऑफ फियर or out of a sense of achievement or a superiority or success. Because of this they want to achieve. ठीक है। तो ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन तो आप रेज कर देना, मैं देखूंगा अगर जरूरत पड़ेगा, बट आई विल टेक अप द क्वेश्चन इन द एंड, दैट इज आई वुड प्रेफर। ओके।
So such a man is driven by greed. And now the thing is, we may look at it otherwise also. He is a slave of an urge to accumulate. वो केवल उस पैसे का मालिक नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि वो उस पैसे का दास है. He is a slave of his material possession because he has spent all his life to earn that. तो हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, तो क्या हम उसके स्लेव नहीं है? We can look at this. It's not that I am possessing the money, it is money which is possessing me, which is controlling me, which is governing my life. So we have to look at it in a different way. Okay. Now we talk about attachment and love. We will try to compare the two because these two are very important things. Okay. Now attachment को मैंने मोह से कहा है और लव को मैंने प्रेम से कहा है. Now let us see what are the difference between the two, so it will become clear. And at the end of it, you will be able to make out whether you are in love with somebody or you are attached to somebody. Okay, and because that is very important. Okay. Okay. Now, what is attachment? Attachment is basically between the two or many. So attachment is based on a sense of division, the sense of two or sense of many, and the sense of I. तो उसमें सेंस ऑफ आई भी होना जरूरी है. यदि आप मैं किसी से अटैच्ड हूं तो मैं अटैच्ड हूं, तो मैं हूं और वो दूसरा व्यक्ति है, तो दो तो मिनिमम है ही. तो देयर इज ए sense of division, there is a sense of two or sense of many, and sense of I inbuilt into attachment. और जो प्रेम है और लव है, इट इज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ वननेस. अगर आप किसी से एकात्मता अनुभव करते हैं कि मैं और वो एक हैं, तो वो प्रेम की कैटेगरी में आता है. अदरवाइज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अटैचमेंट. नाउ then attachment is based on ego or sense of being different from others. ego जो है basically the sense of I ही है. division is ego and the sense of I is ego. So basically it is based on the ego attachment. If you don't have ego, you will not be attached. But on the other hand, love is based on the sense of oneness and it leads to dilution of ego. Now, as your ego dilutes, the two people merge together, the two I's join together and become a single I, then the love manifests. तो बेसिकली जो आई है, आई का कॉन्सेप्ट लव के अंदर डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है. If a perfect love is there, there will not be a single entity. There will not be two entities, it will be a single entity. Okay. Now, in attachment, person is concerned with his own satisfaction. Now, you are attached to somebody because you are getting some pleasure out of it, some benefit out of it. But when you are in love with somebody, you are concerned about his or her satisfaction. So you can compare that whether you are looking for your satisfaction or whether you are looking for the satisfaction of the other being. If you are looking for your satisfaction, you are attached. If you are looking for other satisfaction, you are in love. Okay. Now, the attachment originates from the position of weakness. It is associated with a shortcoming and thus a demand. Now, because attachment may you think that you are missing something, you are losing something, and that is what you want from the relationship. That means you have already accepted that you are incomplete, you have a shortcoming, you need something. But when you are in love, you
love from a position of strength because you are ready to share. Because whatever you have, you are ready to give it to. In attachment, you want it for yourself. In love, you want to give whatever you have to others. So, in love, you are in a position of strength, while in attachment, you are working from a position of weakness. Now, and therefore, the attachment would lead to pain and pleasure. Now, whenever you are attached to somebody and your demand is not fulfilled, it will lead to pain. So, your association leads to pleasure, and non fulfillment of your demands lead to pain. But when you are in love, it brings a joy of sharing, giving, and oneness. So, you are enjoying by giving. So, there is a joy of giving. It is that which you get from love. So this is the difference between the two. Okay. Now, again in attachment, if the relationship would break after the source of satisfaction or pleasure vanishes. Now, when you are attached to somebody, there was a reason for attachment. There was a benefit you are deriving out of that relationship. The moment that benefit vanishes, that the source of satisfaction dies out, what will happen? It will lead to breakups. Or if you are married, it will lead to divorce. Okay? Or what will happen over a period of time, relationship will die out. Now you'll find that there are many your old relationships, they form and they finally die their own death. The reason being they die because now they are no more useful to you. So you do not support it any further. Right? So similarly, if your relationship is based on attachment, the moment your the source of satisfaction or pleasure vanishes, it will lead to a either immediate breakup or a slow decay. While in case of love, there is no effect of separation. Whether you are at a distance, whether you are communicating or not, it will remain a live relationship. Okay. Now I am bringing before you three types of relationship. One is a commercial or business relationship, right? In the commercial, this relationship, objective of the relationship only the exchange of goods and services and money. So you can have a relationship which is purely a business relationship or a commercial relationship in which you are exchanging goods and services and money, right? But there is no exchange of sensual or emotive pleasure, right? Or passion. So if these things are not supported, then this is a material relationship, right? And if this relationship breaks, you don't feel any bad about it. Okay, because there was no exchange of sensual or emotive pleasure or pain or any passion involved in it. Now then, if you are attached, then there has to be an exchange of sensual, which is belongs to your vital part, and emotive, which belongs to your heart part, pleasure and pain or passions. So you should have some sort of satisfaction of your vital being and your heart, right? And that relationship shall give you some pleasure or some pain, not because of the material thing, not because you have given me a chocolate or you have brought a gift for me, but your presence itself is giving me some sort of pleasure. Okay, so that is an attachment. And in case of love, it is unconditional, unidirectional flow of goodwill. So there cannot be any pain because you are only giving. It is a one directional, right? Of course, the other person may also love you, so he or she will also extend unconditional goodwill towards you.
but they are not mutually dependent. And as a result, because in turn you are not expecting anything from the other person, it will not give you any pain. Now, what is the cause of attachment? How does attachment begin? Now, one of the reason is the physical and vital bonds. Attachment is that some bonds are formed between two persons. Now, physical and vital bonds, how they are formed? Suppose you may be receiving a physical support from somebody, physical support in the sense of your survival के लिए, या fear. In case of fear also people may come together, right? Or it may be a sexual need, which is a vital need. तो आपका कोई ना कोई नीड होगी जो आपको साथ में लेके आएगी. It could be a physical need, or it may be a fear, or it may be a sexual need, or any other type of vital need can be there. Okay. Then it can also be emotional bonds. Now, what is the emotional bond? You can keep these things out, but still you are attached. What is the emotional bond? It gives you sense of belongingness. Now, in a family, if you keep the above needs separate, you may still be attached to somebody because of staying together, belongingness. You belong to them, right? You may belong to your family, your caste, your clan, your social system, your friends, relatives, and even your nation, right? Now, when you go outside, you naturally make bonds with the people who are from India. If you go to any other state of India, you make naturally friendship with people who are from Rajasthan or from Jaipur. So there is a sense of belongingness. Okay. Then living together over a period of time. If you are living with somebody for a long time, that also makes an association between the two. And emotional bonds also, they take away the boredom from life. Sometimes these bonds are formed, emotional bonds, because you are not habituated to live alone. You want some partner. It's not that he or she is fulfilling some need. I mean, all these needs which I have spoken above, like physical need or fear or sex, or a belongingness, but because of boredom, you want somebody because you are not habituated to live alone, or it also adds purpose to your life. In a family, you will find that uh, a mother or a father is attached to children, and it gives a purpose to their life. So they form a bond, and that gives a purpose to their life. Okay, so these emotional bonds can be there. बट ओरिजिन ऑफ लव कहां पर है? तो ओरिजिन ऑफ लव जो है, इट इज सेंस ऑफ वननेस. दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग अदर पर्सन एज सेपरेट. एंड इसका जो सोर्स होता है, इसका जो ओरिजिन होता है, वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में होता है. बिकॉज ऑल आवर सोल्स आर कनेक्टेड, सो द ट्रू लव comes from this identity, that we think that other person is no different from me. Okay. Now, how to judge if your association is an attachment or love? Now, I give you some simple ways of finding that whether you are in love with somebody or you are in attachment with somebody. Okay. If you love only one, suppose you are in love with only one person, then it is conditional, it is subjective, right? It depends on that person. It is an attachment and not love. Then it will be attachment. Okay, so check yourself
that if you are in love with one person, it is an attachment, it is not love. Second, if you have complaints, then it is attachment and not love. Because attachment is for fulfilling your needs, love is for fulfilling some other's need. Now, if you have complaints, that means your needs have not been fulfilled, which means that you are actually having attachment and not love. Okay. Third one, if separation brings pain, if you are separated from the person and you feel pain, it is an attachment and it is not love. Okay. And then you may say, when you love all, it is a true love. So unless until you love everyone, you cannot be truly in love. Right? So this is how you can judge whether you are in love or you are in attachment. Now I take some examples of human relationship like mother and child, house, husband and wife, siblings, beloved and lover, boyfriend, girlfriend, between the friends, man and animal. Okay. Now all these relationship actually they have both component. It's not that uh, there is no element of love in a relationship. So same relationship may be based on attachment or same may be based on love. Like for example, take an example of mother and child. If mother is rearing child for the sake of child, then it is love. But if a mother is rearing a child or caring for a child, that in future, when she will be aged and she will not be incapable, her child will help her, then it is attachment. Okay. And similarly, you can talk about husband and wife, sibling also. Your relationship with your brother or sister may be an attachment or maybe a love also. Okay. So it can be either way, uh, uh, depending upon what is the component of your interest in that, your satisfaction, and what is your concern for the others. Okay. On one extreme, the relationship may be based on purely personal benefit, that is selfishness. So all relationship actually lies somewhere on the line. On one extreme is pure selfishness. That means your relationship is valid only till you get your demands fulfilled, or it may be to the other extreme where it is totally self-giving. Okay. So you can see this diagram. On the one extreme, selfishness, on the other extreme is self-giving. On the right side, you can say is the love, on the left side is attachment, and you lie somewhere in between. Okay. So this is how our relationship goes. Now, so this was about attachment and love. Now we move on to uh, another thing. Next item is ambition. What is ambition? Now you will find that we are slowly and slowly going up. Although love is a very high uh, level of क्या कहते हैं, emotion, okay, it's the highest emotion in a human being, that is of self-giving. Uh, and I brought it before the attachment because there is a lot of confusion between attachment and love. There is a very big gap between attachment and love. Love starts from heart while the attachment starts from vital being. So there is a very big gap in between. There is a mind. Okay. And uh, so just to compare the two, I have put them together. Uh,
because there is a lot of confusion between what is attachment and what is love. But now I am going for ambition. Okay. Now, ambition I will be comparing with aim later on. First, we will talk about ambition. Now, ambition is something which is connected to your vital, and aim is something which is connected to your mental, you can say mental value system. तो ये इनमें भी एक गैप है और हम इसको देखते हैं कि एम्बिशन क्या होता है. Now, what is an ambition? Ambition is a desire of acquiring something, a position or a thing in the future. Ambition क्या है? हमें फ्यूचर में कुछ चाहिए. It would bring pleasure or pain depending on success or failure in future. तो ये जो ambition है आपका, वो आपको अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो प्लेजर लेके आएगा और अनसक्सेसफुल होंगे तो पेन लेके आएगा. Pain and pleasure are associated with ambition. Now, we slightly differentiate between passion and ambition. Now, what is a passion? Passion क्या होता है कि जो पैशन है उसमें वाइटल आपका बीइंग जो है, प्राण जिसे बोलते हैं, वो डोमिनेट करता है और माइंड बिकम्स स्लेव ऑफ द वाइटल. नो व्हाट इज इट? कि जो आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके प्राण की जो डिमांड्स हैं, जो हमने डिस्कस की थी, जैसे ग्रीड है, अटैचमेंट है, और आपका ये कोई भी आपका एंजॉयमेंट जिस तरह का है, सेक्स है, फियर है, ये चीज़ें जो हैं वाइटल से जुड़ी हुई हैं. और माइंड जो है, जब माइंड अपना रोल जो है, माइंड एक्ट्स लाइक ए स्लेव ऑफ द वाइटल. तो यहाँ पर माइंड क्या है? सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, बट प्रेफरेंस अपनी नहीं दे रहा है. अगर आपका माइंड इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एम्बिशन है कि मैं एक मान लीजिए एम्बिशन ये है कि आई वांट टू बी ए सीईओ ऑफ सम कंपनी. ठीक है. अब ये जो एम्बिशन है आपका, इसमें हु हैज मेड द चॉइस कि आपको सीईओ बनना है? वो आपका वाइटल है, माइंड नहीं है. आप बिकॉज यू विल डिराइव प्लेजर और पेन आउट ऑफ इट. माइंड डज नॉट डिराइव प्लेजर और पेन. तो वाइटल आपका पेन और प्लेजर डिराइव कर रहा है. वो डिसाइड कर रहा है कि मैं किस चीज के पीछे भागूंगा. वो आपका पैशन है. ठीक है. और माइंड क्या कर रहा है? माइंड इज हेल्पिंग यू इन एग्जीक्यूटिंग दैट. तो आपका जो गोल है वो डिसाइड कहां से हुआ? आपके वाइटल से डिसाइड हुआ. जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्लेजर देता है. तो ये जो है पैशन आपका, दिस इज अ पैशन. पैशन ड्रिवन मैन, जिसने अपना माइंड नहीं लगाया है उसके ऊपर कि उसको क्या चाहिए. सपोज आई एम रनिंग आफ्टर मनी. ओके. फॉर द बिकॉज मनी गिव्स मी प्लेजर, और बिकॉज ऑफ द फियर. तो फियर मेरा वाइटल का पार्ट है. इवन जो मेरे को प्लेजर्स मिल रहे हैं फिजिकल पोजीशन से, वो मेरे वाइटल के पार्ट हैं. मेरा माइंड उनको अक्वायर करने में मुझे हेल्प कर रहा है, बट माइंड नहीं डिटरमिन कर रहा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि माइंड इज साइलेंट. उसको उसको उसकी कोई चाह ही नहीं है. ही इज नॉट डोमिनेटिंग. तो ये पैशन हुआ. ओके. नाउ व्हाट इज एम्बिशन? एम्बिशन में देयर इज ए ग्रेटर रोल ऑफ माइंड. थोड़ा सा पैशन से थोड़ा सा ज्यादा उसमें रोल आ जाता है. पैशन के केस में when you are driven by passion, mind is only planning. But in case of ambition, mind जो है प्लानिंग भी कर रहा है, वो अपनी प्रेफरेंस भी दे रहा है. ठीक है. ये कुछ आपकी चॉइस हो सकती है जो कि जो माइंड को अच्छी लग रही है कि ये करने के. वो कहाँ से आता है? आपके वैल्यू सिस्टम से आता है.
तो अगर आपका वैल्यू सिस्टम कुछ ऐसा है जो ये कह रहा है ये चीज़ वर्थ परसुइंग है और ये चीज़ वर्थ परसुइंग नहीं है, ये जो मेंटल आपके प्रेफरेंसेस बने हुए हैं, ये अगर डोमिनेट करते हैं तो वो एम्बिशन हो जाता है। ठीक है? तो एम्बिशन में क्या है? वाइटल इन्वॉल्व होता है। वाइटल आपको सेंस ऑफ प्लेजर भी देता है और सेंस ऑफ पेन भी देता है। ठीक है? और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है आपका माइंड भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि माइंड, अगर माइंड की लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी उसमें जुड़ गई, बिकॉज आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो, या तो उस चीज के पीछे जो प्लेजर और पेन दे रहा है, या जो चीज आप लाइक और डिसलाइक करते हो मेंटल लेवल पर, तो ये आपका डिटरमिन कर रहा है कि आपका गोल क्या होगा। तो ये एम्बिशन में बी ड्रिवन बाय वाइटल और इट मे बी ड्रिवन बाय माइंड। ठीक है? और एम्बिशन इन्वॉल्व्स माइंड because ambition matures in future. It involves success and joy in future. तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट जो है वाइटल में नहीं होता। आपने खाना खाया, आपको अभी अच्छा लगा, वो खाना अच्छा लगा या खराब लगा, ठीक है? तो वो जो है वो पैशन का पार्ट है, वो वाइटल का पार्ट है। तो वो जो है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कोई चीज आपको अच्छी या बुरी लगेगी, अगर आप इस तरह से प्लान कर रहे हो, तो वो दैट इज पार्ट ऑफ योर माइंड। इसका मतलब माइंड उसमें कोई फ्यूचर का एलिमेंट ऐड कर रहा है। ठीक है? तो वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है माइंड का। और माइंड का एम्बिशन में इसलिए भी इन्वॉल्वमेंट है कि वो प्लानिंग कर रहा है। तो माइंड का जो इन्वॉल्वमेंट है प्लानिंग में है, आपके एक्शन को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने में है, और आपके एक्शन को कई बार डिसाइड करने में भी है कि आपको क्या चीज चाहिए। ठीक है? बट उसके अंदर वाइटल ऑलवेज इन्वॉल्व है, क्योंकि एम्बिशन के अंदर अगर फेलियर होगा तो आपको पेन होगा। तो वो जो चीज है, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइटल ऑल्सो देयर। ठीक है? थस एम्बिशन इज अ मिक्स ऑफ वाइटल एंड माइंड। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्बिशन, इसकी बात करते हैं। अगर आपकी वाइटल डिजायर्स हैं, जब मैंने बात की थी ना पहले कि हु इज डिटर्मिनिंग योर द गोल ऑफ योर एम्बिशन और द टारगेट जो है आपका, अगर वो वाइटल डिजायर से गवर्न है, तो आप मनी के पीछे भागेंगे, फिजिकल कंफर्ट्स के पीछे भागेंगे, रिक्रिएशन के पीछे भागेंगे, एंटरटेनमेंट के पीछे भागेंगे, ट्रेवल के पीछे भागेंगे। ये हो सकती हैं चीजें आपको पुल करेंगी। और अगर आपके मेंटल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो आप पावर चाहेंगे, पोजीशन चाहेंगे, सोशल रिकग्निशन चाहेंगे, इस तरह की कोई चीज होगी जो कि आप चाहेंगे। और आपके मीन्स क्या होंगे? या तो आप बिजनेस करेंगे, या कोई जॉब करेंगे, या कोई प्रोफेशन होगा, या पॉलिटिक्स होगी, या पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस होगी, या सोशल सर्विस होगी। ये सब चीजें, बट कंडीशन ये है कि ये आपको प्लेजर और पेन दें, फीलिंग ऑफ सक्सेस एंड फेलियर दें। आपको अगर ये नहीं दे रहे, तो ये एम्बिशन का पार्ट नहीं है। ठीक है? तो एम्बिशन इज, यू कैन से, a motive, a goal which is linked to your pleasure and pain, satisfaction, dissatisfaction, and then you plan for it कि आप फ्यूचर में ये मैं करूंगा। टेकिंग योर माइंड, तो माइंड आपको उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने में और उसको प्लान करने में हेल्प करता है। अब हम एम की बात करते हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एम और उसमें क्या डिफरेंस है एम्बिशन में। एम क्या है? द पर्पस ऑफ वंस लाइफ। तो इट इज टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर। तो यहां पर भी ये है कि जो है आपकी लाइफ का एम है, और ये फ्यूचर में अचीव होगा, तभी हम उसे एम कहते हैं।
नाउ एम में ओरिजिनेट फ्रॉम इनर बीइंग सोल। तो एम जो है आपका सोल से ओरिजिनेट हो सकता है, बट नॉर्मली ये होता नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सोल के बारे में पता ही नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट सोल एंड मोस्ट ऑफ अस डोंट बिलीव इन सोल। ठीक है, तो ये वहां से ओरिजिनेट होता है। अगर वहां से ओरिजिनेट हो सकता है एम आपका, बट इनवेरिएबली इट इज ए चॉइस। हु मेक्स द चॉइस? It is the mind makes a choice based on your value system. So unlike in ambition where mind was at the background or it was not dominant in making a choice, और उसकी चॉइस जो थी वो मिक्स्ड थी वाइटल के साथ, जिसमें प्लेजर और पेन था। यहाँ पर ये चीजें जो है सिर्फ वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड है, इसमें प्लेजर और पेन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और ये जो वैल्यू सिस्टम है जो आपका, वो डिटरमिन करता है दैट व्हाट विल बी योर एम। तो दिस वैल्यू सिस्टम इज गवर्न्ड बाय योर फैमिली, what you have learned from your family, from your society, from your culture, from the religion in which you have been brought up, or the ideals that appeal to your heart, or anything which appeals to you. These things may come up like, ठीक है, वैल्यू सिस्टम होता है, और ये वैल्यू सिस्टम आपको हेल्प करता है डिटरमिन करने के लिए कि आपका एम क्या होगा। नाउ वाइटल रिमेन्स प्रेजेंट, बट वाइटल ओनली सपोर्ट्स एक्शन। जब एम्बिशन था उसके अंदर वाइटल डोमिनेट करता था और माइंड उसको सपोर्ट करता था। यहां पर माइंड डोमिनेट करता है और वाइटल सपोर्ट करता है। ठीक है, तो and it does not play a significant role, therefore aim does not bring pleasure or pain। इसके अंदर जो है प्लेजर और पेन का कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि वाइटल इसमें डाउन हो जाता है, वाइटल की डिमांड्स खत्म हो जाती है, वाइटल ओनली सपोर्ट कर रहा है आपको। द एनर्जी जो आपका लाइफ फोर्स है वो वाइटल है। तो आपको काम करने के लिए जो आपने एम अपने सामने रखा है, उसके पीछे जो आप दौड़ भाग करते हो, वाइटल सपोर्ट करता है उसको। तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, बट वो अपनी डिमांड नहीं रख रहा। तो ये जो है दोनों में फर्क है कि एम के अंदर माइंड डोमिनेट कर रहा है और एम्बिशन के अंदर वाइटल डोमिनेट कर रहा है। इफ अवर एम इज ए चॉइस, अगर हम चॉइस है हमारा, क्योंकि एम हमारा चॉइस, हमें सोल तो पता नहीं है, तो हमारा हमारा खुद का चॉइस होगा ये, और अगर ये चॉइस होगा तो इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम अवर ईगो। तो जो जो भी मैं हूं, मेरा जो वैल्यू सिस्टम है वहीं से ये ओरिजिनेट करता है, और हमारी जो ईगो है उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, सक्सेस और फेलियर होता है। तो ये जो है एम के साथ मुझे सक्सेस और फेलियर का भी फीलिंग आएगा, एक सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का भी फीलिंग आएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसे इम्पैक्ट रहता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली प्लेजर और पेन, but it is a sort of a satisfaction or dissatisfaction that I have successfully completed it or I have failed in doing it without getting agitated about it. अब एग्जाम्पल्स इनके देखते हैं। नाउ तो ए गोल बिकम्स एम इफ इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रीजनिंग माइंड एंड हार्ट। तो हार्ट से भी आ सकता है आपका जो है, कहते हैं गोल। तो वो अगर गोल वो एम बन जाता है अगर आप माइंड से या हार्ट से वो ओरिजिनेट हुआ है। और गोल बिकम्स एम्बिशन इफ इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाइटल एंड सर्व्स द वाइटल। ठीक है, और द मेंटल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्योंकि माइंड के अंदर भी ऐसी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं जो कि आपको प्लेजर और पेन दे सकती हैं। ठीक है, वो अगर हैं तो ये एम्बिशन हो जाएगा। The difference between the two is that ambition brings pleasure and pain while aim would bring sense of achievement. ठीक है,
ये जो है दोनों में फ़र्क है। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, जिसमें अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग व्यक्ति डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता है। सेम व्यक्ति कैन रिएक्ट डिफरेंटली और डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन। नाउ टेक द एग्जांपल, ये आपका एग्जामिनेशन से है एग्जांपल कि आप जो है कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि यू आर स्टक अप इन ए क्वेश्चन। आप एग्जाम दे रहे हो और आप स्टक अप हो गए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो आपके एकदम फियर आ जाएगा, क्योंकि एंग्जाइटी आपको टेक ओवर कर लेगी और यू विल लूज योर कॉल काम एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पेपर। तो कई बार ऐसा होता है पेपर में कि स्टूडेंट को एक क्वेश्चन नहीं आता, उसको 10 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है पेपर में, उसको बाकी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता। गलती से उसने पहला क्वेश्चन वही पकड़ लिया जो उसे नहीं आता और वो घबरा गया। और उसको फियर किस चीज का है? उसको फियर फेलियर का है, उसको फियर फियर अपनी पोजीशन का है और वो घबरा जाता है कि ये अगर मेरा फेलियर होगा तो क्या होगा। तो वो जो है वो एंग्जाइटी टेक ओवर कर लेती है और उसका जो माइंड है वो बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर वो उसका पूरा पेपर खराब हो जाता है, वो बाकी क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। उसी तरफ एक दूसरा स्टूडेंट हो सकता है जो कि अपना काम मेंटेन करे और वो ये कह सकता है कि भाई ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता ना, बाकी 4 तो आते हैं, तो इसको अभी साइड पे रखो, पहले हम 4 वो कर लेते हैं। तो अगर वो अपना काम को मेंटेन करता है, तो वो या तो उसमें अपनी मिस्टेक ढूंढ लेगा कि उसने क्या गलती की है, या वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा और वो रीजनेबली वेल अपने पेपर में कर लेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने अपना कंट्रोल किसको दिया। आपने अपना कंट्रोल माइंड को दिया या आपने अपना कंट्रोल आपके वाइटल को दिया। एंग्जाइटी इज पार्ट ऑफ द वाइटल और रीजन और कामनेस इज द पार्ट ऑफ द माइंड। तो ये अगर आपने माइंड को कंट्रोल दिया तो आप यू विल सेल थ्रू, और अगर आपने वाइटल को दे दिया तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो वहां पर एक प्रकार का केओस क्रिएट कर देगा और आपका पेपर खराब हो जाएगा। अब एक और केस देखिए कि एक एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर और उस समय आपका जो रिएक्शन है, अगर आप उस एक्सीडेंट को अटेंड कर रहे हैं तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो उस एक्सीडेंट में कौन इन्वॉल्व है। यदि वो कोई अननोन व्यक्ति है तो योर रिएक्शन विल बी वेरी डिफरेंट। इफ ही इज ए फ्रेंड, he is a son or daughter, or you are yourself involved, your reactions will be entirely different. हर केस में आपके रिएक्शंस डिफरेंट होंगे। अगर वो व्यक्ति अननोन है तो यू आर डिटैच्ड और यू वुड मेंटेन योर काम एंड यू विल बी द बेस्ट हेल्प देयर। अगर किसी और व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तब जो बाईस्टैंडर है ही कैन बी ऑफ बेस्ट हेल्प बिकॉज ही कैन टेक द बेस्ट डिसीजन। बट अगर वो आपके फैमिली में से है कोई ऐसा दे तो आप उससे अटैच्ड हो जाते हो एंड दैट विल देन व्हाट विल हैपन, यू विल लूज द कंट्रोल, यू विल स्टार्ट क्राइंग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द सिचुएशन, सॉल्विंग द सिचुएशन, यू विल एग्रेवेट द प्रॉब्लम। तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज जो है क्या कहते हैं, हमें अलग अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति अटैच था और एक व्यक्ति अनअटैच था, सेम सिचुएशन थी, दोनों का रिएक्शन अलग होगा। एक और केस लीजिए अटैचमेंट का। एक डॉक्टर है, सर्जन है, वो कभी अपने बेटे के ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उससे अटैच्ड है। आई हैव हर्ड मैनी केसेस वेयर द डॉक्टर्स, if a son of a doctor is involved, he will pass on the case to his friend, he will not himself go into the OT क्योंकि वो वहां पे अपने को कंट्रोल नहीं रख पाएगा, स्पेशली व्हेन द एक्सीडेंट इज सिवियर। ओके, एंड सेम थिंग हैपेंड विद अर्जुन इन द महाभारत। वी नो कि अर्जुन ने जब दूसरी साइड पे अपने रिलेटिव्स को देखा, अपने गुरुजनों को देखा, अपने पितामह को देखा, तो ही लॉस्ट हिज बैलेंस
And then we had whole Gita before us to restore his calm. गीता ने क्या किया? गीता के आरंभ में क्या है? गीता के आरंभ में यह है कि अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और अंत में क्या है? वो वापस युद्ध में लग गया। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द थिंग, कि ये जो अटैचमेंट था उसका शुरू में, उसकी जो माया थी या उसका जो अज्ञान था, दैट वाज रिमूव्ड बाय लॉर्ड कृष्ण, एंड नाउ ही वाज फिट फॉर एक्शन इन द फील्ड despite the situation remaining same. What has changed? His attitude or his attachment or his relationship with the situation has changed, and that is why his action has changed. तो ये जो है इस तरह का फर्क पड़ता है हमारा, कि हमारा सिचुएशन से अटैचमेंट कितना है, फियर कितना है, और हम कितना उससे डिटैच्ड हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें लॉस ऑफ रेपुटेशन का फियर हो, लॉस ऑफ मनी का फियर हो, डेंजर टू लाइफ हो, तो उस समय भी जो है आदमी के रिएक्शन बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे आपके सामने कोई वो वाइल्ड एनिमल आ जाए, या कोई आपके सामने ऐसा हो कि कोई फ्लड आ जाए, कुछ और ऐसी चीज आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, your reactions would change, and many a times you would not be reasonable because you have lost the control over your mind. ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर इसको रोक दूंगा बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड मॉरल्स, ये एक और सेक्शन था विच आई थिंक टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू सो दैट and just I will tell what I will be covering. Let me see these. I just taking the topic. No. The contents of the following talks. In the next talk, we will be talking about ideals, reason, working of mind, limitation of reason, necessity of value system or a perspective, freedom from perspective, two ways of knowledge, observation and reason versus intuition, faith, soul, and something else, whatever is there, we will talk about. So, if you want to discuss anything, you can ask the questions now. Hello, sir. Sir, हाँ आदित्य बोलो तुम. sir, you were saying something about the love, right? हाँ. How it's based on a sense of oneness, and how we are only thinking about giving and not expecting anything in return. But sir, नहीं, what एक minute, what you are thinking only about giving to the other person, हाँ, not expecting anything in return. हाँ. So I was just wondering, Hmm. what if, I mean, how is it possible to do this when, for example, the other person is actively working against you? You understand? Like, as in, when there is one thing to not expect something positive, but say you are, from your side, you are doing something nice, Okay, and okay. then Yeah, they got do it, something got it, negative. got it, got it. The other person is non-deserving, you mean to say. Yes, Okay. sir. So what I have told you is the idealistic definition of love. Okay. True love is that only, which true love, even your killer, your enemy, you will love him. Okay, despite being that state. Okay. But of course, in a practical way, you will not go up to that level. And that is why I said you lie somewhere in between. Now it is your judgment. Now, whether you can go or not. There is no harm in saying that, okay, I don't love you. What is wrong in it? Love is not, we shouldn't take something like that. What we do is, first we एक चीज को तो हम बहुत पायस बना देते हैं, हाई वैल्यू बना देते हैं, एक को लो वैल्यू बता देते हैं,
और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमें वो करना चाहिए। देखिए, आपको प्रैक्टिकल होना है, बट लव तो वो ही है, उसके बाद मिक्सिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? तो that decision you have to take what you have to do, but I can tell you there are people who have been very loveful towards their killers. ये भी था, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, थे लोग, तो एक्सट्रीम लव होता ही है। बहुत सारे सेंट ऐसे हुए हैं। जो दयानंद का केस है, महर्षि दयानंद का, कि उनको जिस आदमी ने जहर दिया था उसको उन्होंने माफ कर दिया था, उसको कहा था तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हें लोग यहाँ पर वट एवर इफ आई रिकलेक्ट प्रॉपरली तुम्हें मार देंगे, तो उसको भेज दिया था। तो ऐसे कई केस होते हैं। ट्रू लव तो वो है, बट आई दैट डजंट मीन दैट यू शुड बी फॉलोइंग दैट। ये आपको प्रैक्टिकल देखना है और आपकी अपनी लिमिटेशंस भी आपको देखनी है, ठीक है ना? इसमें कोई एंड लविंग ऑल्सो डजंट मीन दैट यू कैन नॉट किल द पर्सन। देखिए, लव का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे आदमी को मार नहीं सकते। द ओनली मीन इज दैट यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम हिम। अर्जुन ने जब क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को मारा था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनको प्रेम नहीं करता था, लेकिन द टाइम डिमांडेड दैट दे शुड बी किल्ड एंड ही किल्ड देम, दैट्स ऑल। और इसी तरह से जो सेना सीमा पे जो फौजी खड़ा होता है वो सामने वाले व्यक्ति को हेट करके नहीं मारता है। इट इज his duty to kill the person who is standing before him as an enemy. He kills them, and then you will find that they also respect him. उसको बो भी करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं और उसको प्रॉपरली उसको बरी भी करते हैं, उसका उसका क्रीमेशन भी करते हैं वो लोग, but they kill it. So that doesn't mean that love doesn't mean that you cannot kill the person. Okay, if the situation demands, you can do that. The only thing is that you should not be doing only for anything for your personal gain. Okay, थोड़ा सा ये हाई Okay, sir. फिलोसफिक हो जाता है, स्पिरिचुअली हो जाता है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है। ठीक है, और कुछ? एनीबडी एल्स? Hello, sir. हाँ, आकाश बोलिए। Sir, you said that material people measure successfulness on how much wealth they acquire. हाँ हाँ So, can you please explain me that what should be the ideal parameter for measuring success? हाँ, हम बात कर सकते हैं इसकी, बट हम ये जब कंप्लीट हो जाएंगे ना तब मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे, क्योंकि अभी जब तक आप समझेंगे नहीं चीज़ों की कौन सी चीज़ कहाँ से उठ रही है तब तक ये रहेगा नहीं ना। देखो, जैसे अभी आदित्य ने बात की ना, द एब्सोल्यूट लव क्या है वो मैंने बताया, बट यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट, इट इज नॉट ईजी टू फॉलो इट, राइट? सिमिलरली जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो एम फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, जो गोल लाइफ का फॉलो करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। यू विल हैव टू मेक अ compromise. So what compromise you make is that you know the scale कि लोएस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है और मैं कितना हाई जा सकता हूं। So depending upon your limitation, your preparedness, you try to reach the highest. Okay. Okay, sir. So you should know what is the highest, you should know what is the lowest, and you should know what is your capabilities, how much you can in this particular life with your means you can try for, and you should try the highest possible with your existing limitations. Okay. Okay, sir. एक बड़ा अच्छा कोट आता है और मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। ये मदर का कोट है
उन्होंने उनसे एक बार किसी ने ये पूछा था कि भाई मतलब भगवान के लिए हमें क्या देना चाहिए? तो मतलब वो कहते, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए भगवान के को, मैं क्या दूँ? तो भगवान मेरी तो कोई वो चिंता ही नहीं करेंगे, मेरा मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखेंगे, बिकॉज़ मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। तो मदर ने ये कहा था कि द गॉड आस्क्स फ्रॉम यू नथिंग मोर देन व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उससे ज़्यादा नहीं माँगता, बट नथिंग लेस देन दैट, दैट इज़ कॉल्ड टोटल सरेंडर। तो आपके पास जो है उससे ज़्यादा नहीं माँगा जाता, आपसे सिर्फ उतना ही माँगा जाता है जितना आपके पास है। तो जो आप हाईएस्ट अचीव कर सकते हो वही आपसे माँगा जाता है, इवन व्हेन द हाईएस्ट मे बी स्टिल फार अवे। ठीक है? ऐसे ही एक और कहानी मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है कि यू मस्ट मतलब मैंने इसको कई बार सुना है और मेरे लिए इट्स ए वेरी हार्ट मूविंग स्टोरी, और अगेन इट इज़ रिलेटेड टू मदर। व्हाट हैपेंड कि एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग थे, वो ट्रेन में बैठ के पौंडीचेरी जा रहे थे, एंड दे वर डिवोटीज ऑफ श्री अरबिंदो एंड मदर। नाउ दे वर सिंगिंग वेरी हाई ऑफ देम। तो वहां पर एक साधु बैठा था, और वो साधु जब उनकी बातें सुन रहा था तो उसने कहा कि आप लोग ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे साक्षात भगवान इस धरा पर आए हैं, और मैं जो है अभी ये तीर्थों की यात्रा करके लौट रहा हूँ, और मेरे पास अब कुछ भी पैसा नहीं बचा है, मैं अब वहाँ जा नहीं सकता। मेरी इच्छा था कि मैं वहाँ चले जाऊँ पौंडीचेरी और उनके दर्शन कराऊँ, तो मेरे पास ऐसा पैसा नहीं बचा है। मेरे पास ये 1 रुपया बचा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप जाके मदर को दे देना, मेरी तरफ से ये भेंट दे देना। और जब मदर को उन लोगों ने दिया, उन डिवोटीज ने वो 1 रुपया दिया, तो मदर के वर्ड्स ये थे कि इस 1 रुपए का मूल्य भगवान को भी चुकाना मुश्किल पड़ेगा। अर्थात उस 1 रुपए की इतनी वैल्यू थी। तो द थिंग इज, इफ यू हैव डन द बेस्ट यू कुड, दैट इज द बेस्ट। इससे ज्यादा आपसे मांगा नहीं जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि टॉप क्या है, आप ये सोचिए कि आपका टॉप क्या है, वो आप करिए। ठीक है? एनीथिंग एल्स? Sir, can you please explain me again, like what we can say about vital in layman language? वाइटल इन, देखो, Layman language. वाइटल के साथ जो सबसे पहली चीज रिलेटेड है, दैट इज योर लाइफ फोर्स। ठीक है? देन द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू कैन से डिजायर्स, योर पैशंस, योर फियर, इवन सेक्स इज पार्ट ऑफ वाइटल। लोअर वाइटल का पार्ट होता है सेक्स, और एम्बिशन भी जो है टच करता है वाइटल को, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये सब चीजें जो आपको प्लेजर और पेन देती हैं, लाइक यू, फूड है, फूड को आप खा रहे हैं, उसमें से आप जो एंजॉयमेंट ले रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ वाइटल। ठीक है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, ये जो है और वो उसके साथ पेन भी होता है, क्या कहते हैं, टेस्ट एंड डिसटेस्ट, प्लेजर एंड पेन, ये जो भी चीजें मिल रही हैं आपको वाइटल से हो रही है। ठीक है? एक्टिविटी, एक्शन, फोर्स, these are part of vital. ठीक है? आपसे Okay, आकाश? sir. Thank you. Thank you. तो कैन वी क्लोज दिस नाउ? Yes, sir. Thank you. हाँ, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वी कैन स्टिल टेक इट, बट आई थिंक इट्स बेटर टू क्लोज इट नाउ, एंड if you have question you can post me, I can come prepared next time with those questions. Okay? और ठीक है, any change you want in this format? No, sir.
Okay then. Bye everybody. Good night. And I'll inform you when we meet next. Okay. Good night, sir. Good night.